Hello everyone, welcome to Defense Studies. And this is the fifth lecture of previous year polity question discussion series for CAPF Assistant Commandant exam. And today we have picked up 2016 polity questions of CAPF exam. First question is, which of the following is not a source of political legitimacy? So what is political legitimacy? It means it is the right and acceptance of an authority, usually a governing law or a regime. Suppose take an example of North Korea. So in North Korea, there is a government, that too is dictatorship. So a dictatorship type of government is in North Korea. Do the people of that country, they really accept that dictatorship type of government? So there is a big question mark over the legitimacy of that government. So this is called the political legitimacy. So coming back to the question, which of the following is not a source of political legitimacy? First is consent. Yes, in a political legitimacy there is always a consent, that whose consent? That is of people. Second is rational prudence. Third is political will of the ruler. So the political will of the ruler in political legitimacy does not hold any relevance. अगर political will of a ruler mainly works in the dictatorship type of government. And D is public reason. It's an important features of political legitimacy. So our answer is C. Second, which of the following is a characteristics of presidential form of government? There are two type of government. One is presidential, another is parliamentary. So parliamentary form of government is in India and the presidential form of government is in USA. So we have to tell which of the following characteristics of presidential form of government. ठीक है, first is president is not a part of legislative body. Yes, this is a correct statement. So our answer also. Second is it does not separate legislative and executive functions. Yes, it does separate this legislative and executive functions. C is president follows the principle of collective responsibilities. No, this is not a feature of presidential form of government. It is a feature of parliamentary form of government which is in India and the UK. फोर्थ क्या है? द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट डिपेंड्स अपॉन द लेजिस्लेचर. देखो इसमें टेन्योर जो लेजिस्लेचर का डिपेंड नहीं करता है, किस पे? वो प्रेसिडेंट का लेजिस्लेचर पे, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर. बट इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक इन इंडिया, इट डिपेंड्स अपॉन द लेजिस्लेचर. अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, फर्स्ट इज the presence of nominal and real executive head. So who is the real executive head of India? That is the PM. And nominal head कौन है? It is the president. Second is majority party rule. So suppose if in a house there are 500 seats, whoever gets 251 seats, he will rule. ठीक है. And third is collective responsibility of the executive to the legislature. Collective responsibility का मतलब है, suppose this is parliament, this is राज्यसभा एंड दिस इज लोकसभा. सो लोकसभा के अंदर देर आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो एमपी हैं, जैसे 500 एमपी हो गए तो उसमें से द गवर्नमेंट जो बनाएंगे, सपोज 250 एमपीज इन द गवर्नमेंट विच फेवर्स द गवर्नमेंट. एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं? 15% ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. सो 15% अराउंड. Suppose this is the body of council of ministers. So these council of ministers are responsible to the Lok Sabha only. ठीक है, that is the collective responsibility of the executive to the legislature. Fourth is membership of ministers in the legislature. What happen is in presidential form of government, membership is not required to become the minister. But in case of parliamentary form of government, membership is required. ठीक है. दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है, अगर किसी को मिनिस्टर बनना है तो ही हैज़ टू बिकम द मेंबर ऑफ दैट पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ. सो 6 मंथ में ही हैज़ टू अटेन द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट. फिफ्थ इज लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर इज द
important feature of parliamentary form of government and the dissolution of Lok Sabha और assembly. ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म के ये चार क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स, आप पढ़ लीजिएगा. इफ़ यू कंपेयर द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव के इसमें जो बेसिस है, वन ऑफ द क्राइटेरिया इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देर आर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देर आर सिंगल एग्जीक्यूटिव. अकाउंटेबिलिटी किस पे है? मेनली अकाउंटेबिलिटी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेनली अकाउंटेबल टू द लोकसभा, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल ही नहीं है लेजिस्लेचर के. ठीक है, मिनिस्टर्स ओनली फॉर्म अमंग एमपीज. ठीक है, अगर कोई मेंबर एमपी नहीं है, ही इज़ मेड एज अ मिनिस्टर, सो उसको 6 मंथ में अपनी क्या करनी होगी, मेंबरशिप अटेन करनी होगी पार्लियामेंट की. ठीक है, एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, इट्स अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. टेन्योर फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में टेन्योर फिक्स्ड है. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजंस फॉर द अबोलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है मोस्टली कैंडिडेट को कन्फ्यूजन रहती है. सपोज दिस इज़ अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा. सेम थिंग इन स्टेट्स, जिस भी स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म है, ठीक है, 2 हाउस हैं, उस स्टेट में क्या होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. लोअर हाउस को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल जो डील करता है क्रिएशन एंड अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, इट इज़ अंडर आर्टिकल 169. ठीक है, इसके अंडर हम क्रिएट और अबोलिश कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को. 169 ये रहा. ठीक है, आर्टिकल 171 इज रिलेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो कॉम्पोजिशन होगी, कॉम्पोजिशन मीन्स उसके मेंबर कितने होंगे उसके अंदर. ठीक है, एंड वन आर्टिकल 182 इट इज़ डीलिंग विद द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और 356 is important because it is regarding the president rule, that is the state emergency. So composition की अगर बात करूँ तो legislative council की, so first of all it is indirectly elected. The people of state cannot directly elect the member of legislative council. ठीक है, indirectly election होगा उनका. Second is maximum strength, क्या है उसकी strength होगी minimum 40 और मैक्सिमम 1/3 ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ. उसकी असेंबली की जो स्ट्रेंथ होगी इस असेंबली में, सपोज 300 मेंबर्स है असेंबली में, सो 1/3 कितना हो गया 100, और मिनिमम कितने होने चाहिए 40. तो 40 और 100 के बीच में विल बी द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. और लास्ट है द कंपोजिशन हैज़ फिक्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स. और उसका मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दिस लोकल बॉडीज़. लोकल बॉडीज़ में कौन कौन है, जैसे मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है, सरपंच, वो कितने मेंबर्स को दिस अपॉइंट करेंगे, 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. और 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर एंड 1/12 आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स ऑफ द स्टेट एंड 1/12 आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स. फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द D, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़. यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल के अंदर है, इट इज़ अंडर आर्टिकल 44. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज़ अंडर आर्टिकल 40 एंड राइट टू एजुकेशन इज़ अंडर आर्टिकल 21A, जो कौन से 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंडर इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. फिफ्थ इज पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर जनरली फाउंड इन. सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर. इसका मतलब है इट इज द टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर विच हैज़ लिमिटेड रीच ऑफ पार्टिसिपेंट्स. सो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें बहुत लिमिटेड होते हैं बिकॉज इट इज़ मेनली फाउंड इन फर्स्ट ऑफ ऑल इन डेवलपिंग सोसाइटीज़. ठीक है, डेवलपिंग सोसाइटीज़ में क्या होता है, द पीपल दे आर लेस लिटरेट. ठीक है, इलिटरेसी इज़ हाई, एजुकेशन लेवल इज़ लो, हेल्थ
लेवल अगेन क्या होता है, लो, ठीक है। दे डू नॉट हैव द विजडम, सो दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द लोकल इशूज़। सो लोकल इशूज़ में जब इन्वॉल्व होते हैं, देयर इज़ अ पॉलिटिकल, दिस पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दे डू नॉट थिंक ओवर नेशनल इशूज़, कि नेशनल इश्यूज़ क्या हैं मेनली, व्हाट आर द बिगर नेशनल इश्यूज़, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल बिल्डिंग, तो इस तरह की चीज़ें वो नहीं देखते हैं इन अ डेवलपिंग कंट्री मोस्टली इन। सो व्हाट आर पैरोकियल कम्युनिटीज, आई हैव टोल्ड दैट they are reluctant to involve in political interest outside their region. Suppose one particular village sarpanch is there and there are problems of drinking water, there are problems of cattle, ठीक है, some disease is there, health issue is there, medical facilities is not there, so they are mostly engaged in these kind of activities. So our answer is A, developing societies. Sixth is, who among the following sociologists is the first to propound the concept of civil society? किसने propound किया था? It was Adam Ferguson, ठीक है। So civil society क्या है? Civil society means they are mainly outside the government. So जो government का part ना होके, suppose this is the government, they take decision for the welfare of the people. पीपल के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या लेती है, डिसीजन। एंड देर इज़ अनदर बॉडी जो पीपल की ही होती है, ठीक है। अमंग पीपल देर आर सम सर्टेन इंटेलेक्चुअल्स, सो सिविल सोसाइटी उसको बोलते हैं। सो सिविल सोसाइटी मीन्स दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सम इंटेलेक्चुअल्स, सम NGOs, ठीक है, सम सिविल सोसाइटी और के मेंबर्स विच वांट और वर्क फॉर द बेनिफिट और वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी मोल्ड करती है ड्यू टू सम प्रेशर ग्रुप लाइक सिविल सोसाइटीज़, NGO, ठीक है। मैं ये स्टेटमेंट भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। सिविल सोसाइटीज एज द एरेना आउटसाइड द फैमिली, द स्टेट एंड द मार्केट विच इज़ क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस टू एडवांस शेयर्ड इंटरेस्ट। Seventh question, the constitution of Jammu and Kashmir came into force on, yes, important question, answer is D, 26 जनवरी 1957. So J&K जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956 and came into force on 26 जनवरी 1957. So there is a slight difference between adoption and enactment. ठीक है, एनेक्टमेंट का मतलब है केम इनटू फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स हु हैज़ और had constituted our constitution, that is back in 1946 से 1947 a body was constituted to make our constitution. तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? इसमें 389 members was the total strength, and out of this 296 were to be allocated to British India and 93 members were from the princely states. So जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फर्स्ट वॉज गिवन बाय this M.N. Roy in 1934. In 1935 again it was officially demanded. फर्स्ट इनफॉर्मली कब था? 1934 में। ऑफिशियली डिमांड कब हुआ था? 1935 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ IMC डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है, आउटसाइड इंटरफेरेंस मीन्स नो अनदर कंट्री शुड बी इन्वॉल्व बाय फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कैबिनेट मिशन 1946 में क्या था? पुट फोर्थ स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की, फर्स्ट तो राइट है, इट्स अ राइट बिकॉज नॉट इट वॉज बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी, सो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. Second is it result from direct election, again a wrong statement.
Third is it was a multi-party body. No, it's a wrong statement. Fourth is it worked through several committees. Yes, our answer is C. Ninth is who among the following may be the chairman of Jilla Parishad? Who among the following may be the chairman of Jilla Parishad? Chief Minister is not a chairman. Second is district collector is also not a chairman. C is member of parliament in the district, again wrong. And elected from its own member. So जिला परिषद के जो members होते हैं उसी members में से एक को क्या अपॉइंट किया जाता है? चेयरमैन. So the election of members and chairperson, these are three important things you have to keep in mind. Tenth is what is meant by social equality. देखिए CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में सोशल इक्वालिटीज़, सोशल वेलफेयर, ठीक है, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अगर आपको पेपर 1 में नहीं मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइम में नहीं मिलेगा, तो आपको पेपर 2 ऐसे राइटिंग में ज़रूर मिलेगा या फिर इंटरव्यू में पूछेगा. ठीक है, तो इसके लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है? क्लास 11-12 की सोसाइटी की बुक पढ़नी है और एक बुक है क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, वो आपको प्रिपेयर करनी है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सोशल इक्वालिटी? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ईच पर्सन शुड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस. रॉन्ग. सेकेंड इज नो एफर्ट शुड बी मेड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम. ठीक है, वो इक्वालिटी क्या हुई? जो अगर एक बार जो बन गया जो सिस्टम, ठीक है, तो उसको अगर हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे तो देयर विल बी नो इक्वालिटी. सी क्या है? नो पर्सन शुड बी मेड टू सफ़र ए पोजिशन ऑफ रिलेटिव इन्फीरियोरिटी इन रिलेशन टू अदर मैन ड्यू टू कास्ट, रेस और रिलीजन. ये राइट आंसर है. 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ये है फेडरलिज्म. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. हर एक स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर है विच इज़ राइटली मैंशन इन द स्टेट लिस्ट अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. शेड्यूल 7 के अंडर देर आर 3 लिस्ट. वन इज़ यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज concurrent list. ठीक है, so every state has some subjects to make law on it. Second क्या है? Courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government. This is also a correct statement. ठीक है, but we have to find out not correct. थर्ड इज स्टेट आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट कोई सबॉर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिकॉज 7 शेड्यूल में राइटली डिवीजन ऑफ पावर दे रखा है. यूनियन लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट है जो जिसपे सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगी. ठीक है, तो स्टेट्स आर नॉट ए सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और आवर आंसर ऑल्सो. 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन राइट इज नॉट करेक्ट? अगेन वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट क्या है? Human rights derive their inspiration from moral principle. Yes, and they are applicable subject to their adoption by states. Yes, a right statement. C, the International Covenant on Civil and Political Rights was adopted by the United Nations in 1948. यहाँ गड़बड़ है थोड़ी, because it was adopted by the United Nations on 16 December 1966. सो 16 दिसंबर सबको पता है इट्स अ ह्यूमन राइट डे, बट दिस 1966 इज इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है. सी इज करेक्ट आंसर. 13th क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, दोबारा पूछ लिया. क्वेश्चन नंबर 14, अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट set forth in which of the following article of the constitution of India. So amending power article 368 के अंडर है, सबको पता है. आर्टिकल 13 क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. आर्टिकल 360 क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी. 368 जो भी पढ़ा है दैट इज़ द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट. 370 इज रिलेटेड टू द टेम्पररी प्रोविजन. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Question number 15. With regard to a constitution amendment bill
Which of the following statement is not correct? Again, you have to find out a incorrect statement. First is the Speaker of Lok Sabha can call a joint sitting of both the houses to pass the bill. ठीक है, रिगार्डिंग अमेंडमेंट बिल. अमेंडमेंट बिल के अंडर क्या होता है, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है. सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. द स्पीकर ऑफ द लोक सभा कैन नॉट कॉल अ जॉइंट सिटिंग. ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. 16th, cut motion can be introduced after the presentation of any bill introduced in the parliament. No, because ये mainly it can be introduced after the presentation of budget. ठीक है, अगर कोई बजट हाउस में इंट्रोड्यूस किया है तो उसको अपोज करने के लिए देयर आर सर्टेन मोशंस. ठीक है, कट मोशन इंट्रोड्यूस करे जाते हैं. और कट मोशन कितने तरह के हैं, एक पॉलिसी कट है, एक इकोनॉमी कट है, अनदर इज टोकन कट. सो टू रेज द ग्रीवेंसेस अगेंस्ट एनी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसको रेज करने के लिए दीज कट मोशन आर इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट. सो आंसर इज द रेलवे एंड जनरल बजट. अगर मैं पॉलिसी कट की बात करूँ तो पॉलिसी कट मोशन इज रिप्रेजेंट द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी. मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ वन पर्टिकुलर स्कीम. ठीक है, सपोज MG नरेगा, but the opposition think that this particular scheme is not addressing the real problem of the societies. Unemployment remains the same. ठीक है, literacy is there और wages are very low in this scheme. So अगर उन्होंने disapproval दिखाना है regarding this scheme, so they will introduce a this policy cut motion and ₹1 amount will be deducted from the authorized amount to this scheme. So this is policy cut motion. Economic cut motion में a specific amount होगा जो उस particular scheme से कट होगा. और टोकन कट मोशन में क्या होगा, if there is that the government does not fulfill or could not fulfill any specific responsibility towards द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, टोकन कट मोशन. ठीक है, और उसमें कितना रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ ₹100. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड गवर्नमेंट इनटू रिपब्लिकन, मोनार्कियल एंड डेस्पोटिक. रिपब्लिक गवर्नमेंट क्या होती है, इन विच द स्टेट ऑफ द हेड इज इलेक्टेड लाइक द प्रेसिडेंट. मोनार्कियल में क्या है, मोनार्कियल मीन्स द स्टेट ऑफ हेड इज hereditary, means there is no as such election. Despotic means there is a power struggle, means everybody is going for a power struggle. So this is despotic, also meaning of dictatorship type, dictatorship, who is hungry for power. So ये डिवीज़न किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय मोन्टास्क. ठीक है. सो वी विल वाइंड अप हेयर. नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल कम अप विथ 2015 CAPF पॉलिटी क्वेश्चन डिस्कशन. सो थैंक यू, गुड बाय.